ویلکم بیک. آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے. کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے، ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں، اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے. کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں اور وہاں ہماری دعا کریں. وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو پچھلے چند سال سے اللہ تعالیٰ ہم کو مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف ہوگا. شکریہ اسپیکر. میں فارمل جو وائنڈ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث میں بھرپور حصہ لیا. معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں. معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا obviously مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا. لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد، اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کی ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز کی، جس کے لیے پھر دل کی گہرائی سے کرتا ہوں. جناب اسپیکر، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں. ان معزز خواتین ان ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی خاص طور پر خواتین کی طرح بہت اچھی تجویز پیش کی. جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، شدید توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل، آبی تحفظ، آبادی میں اضافے کی روک تھام، بیروزگار نوجوان کی فنی مہارت، بیزید سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت، ای او بی آئی کی پینشن، روس سے تجارت بڑھانے، کم از کم اجرت 32,000 روپے، صحت اور تعلیم کے فروغ، ان کی ڈیولپمنٹ کے بہترین تجاویز میں دی گئی. میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں. ہم نے کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ کے پروگرام بنائیں. کے معزز نے بھی انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی. اس پر میں سینٹ کے معزز اراکین کی قائمہ کمیٹی کی طرف فائنانس بل 23-24 اور بجٹ جائزہ ہے وہ یہ مشعل رہا. معزز قائمہ کمیٹی نے
चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनजर रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की। और इसी तरह जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी FPR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेंबर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में खास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में जाने वाले अदारों की निष्कारी, यूटिलिटी स्टोर, सस्ते दामों बीज, खाद और शमसी तवानाई पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी जो किया गया है। पूरी कोशिश की मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शियल कर लिया जाए, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ कि मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तजियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलू की सताइश की और उनके हकों की तरफ से पेश करदा तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर, कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उम्र 0। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया गया था। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है, जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद जरूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो सजा रखो सिर्फ उन पर लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सिलेक्ट किए गए थे, खसूसन उनके स्टेट 10% था, वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हो। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 6% टैक्स की शर्त के मामले में वाज़ेह करता हूं, ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए वक्त की अशद जरूरत है इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स, ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर लाया जा सके। जनाब स्पीकर, 12 नवंबर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर आने के इक़दाम को भी यानी उसकी मुखालफत की। मैं करता चलूं कि कंपनियां शेयर होल्डर कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर वसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस काम के जरिए हमने बोनस शेयर पर टैक्स आयद हमने बोनस शेयर के लिए
डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो मान है, जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू होगी। ये ऑब्वियसली ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर, ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करे, डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं, बीआर में जमा करवाते हैं। बोनस जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट, उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफजुल अमल थी। जनाब स्पीकर, अब मैं उन अहम तरमीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तलिफ फोरम्स की सिफारिशात की बुनियाद पर फाइनेंस बिल में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए मुतारफ कराए गए 99D सेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है, जिसने इसमें खारजी अवामल वजह से गैर मुतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन। मैं सब यकीन दिलाता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान भाइयों और बहनों को कि ये कानून सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसका हदफ किसी खास शख्स ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जाएं। इसका हदफ किसी खास शख्स या कंपनी की तरफ नहीं है, बल्कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात का तयन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासर से फायदा उठाते हुए विंडफॉल गेन किया है, तो ये प्रोविजन पूरे शोबे पर नाफिज की जाएगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि बहुत कंफ्यूजन है कि शायद इंडिविजुअल्स को भी पिक किया जा सकता है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंडफॉल गेन हो। ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरा सेक्टर होगा और ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, ये इंडिविजुअल इसमें नहीं आएंगे। तो दो इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं, एक तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, दूसरा ये इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा, और तीसरा ये पूरे के पूरे सेक्टर पे भी लागू होगा। अब इसमें मैं अर्ज करूं कि जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो इस तरह की कानून साजी कर रहा है। कई ममालिक में विंडफॉल गेन्स के ऊपर टैक्स है, यूरोप समेत कई ममालिक ने ये टैक्स अपने ममालिक में लगाया हुआ है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे कि कारोबारी एतमाद मुतनज़्ज़ल ना हो, और हम नहीं चाहते कि कानून की इस शिक की वजह से लोग घबराएं। एनॉमली कमेटी जो हमने सेटअप की, जिसका मैंने जनाब को नोटिफिकेशन पेश किया था, नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसकी सिफारिशात की बुनियाद पर पहले विंडफॉल गेन टैक्स जो था वो 5 साल जो थे पिछले, उसके ऊपर ये लागू हो सकता था। ये कारोबारी लोगों ने जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई 9 जून के बाद, उनका ये तजवीज थी कि चेयरमैन कमेटी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग इनकी भी कमेटी का ये था, इसको फिर टाइम, इसको पीरियड कम कर, तो हमने 5 साल को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया है, और ये फिस्कल ईयर 20-21 जो यानी जो टैक्स ईयर है उससे लागू होगा। तो ये हमने इसमें इंप्रूवमेंट कर दी है, क्योंकि हमारी अपनी कमेटीज दोनों जो है, मैं मिसाल देने लगा हूं, मैं कोई अपना फ्यूचर का माइंड नहीं दे रहा, हमारी अपनी दोनों कमेटीज ने, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज ने और सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने बार कई दफा ये नुक्ता उठाया कि मुल्क में जो फॉर एग्जांपल बैंक जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गेन्स किए हैं, हुकूमत उसमें क्यों नहीं कोई उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी करती एज ए विंडफॉल गेन। तो आपको एक इशारा दे रहा हूं कि उस तरह के जो भी सेक्टर होंगे वो इसकी जद में आएंगे, और इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि खुदा न खास्ता को विच हंटिंग है। ये कानून बहुत मुल्कों में अवेलेबल है, बजाय ये कि हम किसी एक सेक्टर का किसी एक स्पेसिफिक फैसला करते, ये हुकूमत को और सिस्टम को ये हम एक न्यू वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज होगी तो इस पर अमल होगा। जनाब स्पीकर, तवानाई के बचत के मंसूबे के तहत काबीना ने तवानाई के इन एफिशिएंट पंखों पर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया था। प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स की, और वो मीटिंग थी यानी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज के अलावा जो टेक्निकल अदारे हैं मुल्क के वो तमाम उसमें मौजूद थे, और उस हवाले से
یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے میں اس بریفنگ میں موجود انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے. تو ایکچولی یہ ریونیو کے لیے نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا, اور یہ بات نہیں ہے, یہ ریونیو کے لیے بالکل نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو. وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے, اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی. اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت ٹیکنالوجی جو وقت 6 مہینے کی اس میں یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا, اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی طویل مدت شیئر ہولڈنگ کو فراہم کیے ہوئے تھے, اس سلسلے میں ہم قانون میں ضروری تبدیلیاں لا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وفاقی حکومت کا تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3500 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز پر لٹیگیشن میں ہے, اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا, اور کوششیں ہوئیں لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہٰذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی سکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا, اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. 3 رکنی کمیٹی تجویز کر رہے ہیں, اکثریتی بنیاد پر تنازعات کا فیصلہ کرے گی. سربراہی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج کرے گا, جبکہ چیف کمشنر اس کے رکن ہوں گے, اور تیسرا رکن ٹیکس پیئر خود یا اس کا نامنی ہوگا. اس کے فیصلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, شیخ صاحب جو آپ چیئرمین ہیں اور بزنس کمیونٹی آپ کا تعلق ہے, جناب اسپیکر, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہم اس میں لا رہے ہیں اسکیم میں, ADRC کا فیصلہ FPR پر تو بائنڈنگ ہوگا لیکن ٹیکس دہندگان پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. اگر وہ جانا چاہے تو اپیل میں چلے جائیں. یہ میرا خیال ہے اس سے کوئکسٹ اور اس سے بہتر ہم تیزی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. امید ہے کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر, فائنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے
अपनी गुजारिशात पेश करने के अलावा मैं बजट तखमीना जात पर जनरल डिस्कशन को समेटते हुए चंद चीजें अर्ज करना चाहता हूं। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की जरूरियात और अफराद ज़र को मद्देनजर रखते हुए जो खुर्द-ओ-नोश की अशिया की कम कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को रमजान पैकेज के अलावा वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मौजूदा माली साल में 24 अरब रुपए मुहैया किए थे, यानी जो 30 जून को साल खत्म हो रहा है। जो आने वाला माली साल है जो 30 जून 2024 को खत्म होगा, इसमें रमजान पैकेज के लिए 5 अरब और वजीर आजम रिलीफ पैकेज जिसके जरिए सस्ती अशिया जो स्कोर कार्ड के जरिए लोगों को मिलती हैं, जो वेरीफाई होते हैं, उनके लिए 34 अरब रुपए की एलोकेशन यानी खती रकम इस बजट में मुख्तस की गई है। नंबर 2, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के आपको याद होगा 360 अरब रखे थे। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद हमने इसमें मजीद 40 अरब का इजाफा किया और ये 360 अरब को हम माली साल 22-23 के दरमियान में 400 अरब पे लेंगे और 1 जनवरी 2023 से जो इसके बेनिफिशियरीज हैं जो बिस पे उनको यानी उस नई 25% इजाफे के साथ उनको वज़ाइफ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया। अब इस बजट में हमने इनिशियली जो इस वक्त हाउस की मलकियत है और इसको हम पेश कर चुके हैं, हमने 450 अरब रखे थे, लेकिन हमने मजीद इसको कैलकुलेशंस करके कुछ और नीड आपने देखा कि कल मोहतरमा इसकी जो मिनिस्टर साहब है शाजिया मरी साहब की कुछ तजावीज़ थी और इस तरह हमने देख के हमने जो रिकैलकुलेट किया हम इसको रिवाइज कर रहे हैं 466 अरब पे। इसमें मजीद 16 अरब का इजाफा कर रहे हैं बिस में माली साल 2023-24। जनाब स्पीकर, दिफाई बजट के ज़िमन में इस मुअज़्ज़ज़ अरकान में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुमलकत पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुल्क कौम के दिफा और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेज की नुमाया कारकर्दगी और कुर्बानियों पर फख्र है। हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह हमने देनी है और इस सिलसिला में तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हम मुसल्लह अफवाज को जो जरूरी फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। मैं आपको रेफर कर रहा हूँ सेनेट की जो स्पेशल उन्होंने जो एक तजवीज़ दी कि इनको स्पेशल आप इंश्योर करें कि इनकी ज़रूरियात पूरी करें। ये हम सब का महसूस फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिला में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे और बजट में जो रकम मुख्तस है वो वक्त पे रिलीज़ की जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इस अमर की भी यकीन दहानी कराता चलूँ कि मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इकदाम, ये तमाम चीज़ें मैंने अर्ज़ की कि इस हाउस ने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अरकान ने कमेटी ने इनको फ्लैग किया है। मैं उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि तकरीबन 30 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से बेहतर हिकमत अमली के जरिए मौसर इकदाम उठाएगी ताकि जो प्रपोजल्स इस हाउस ऑनरेबल हाउस से मिले हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दिए हैं इन एरियाज में, इंशाअल्लाह ताकि उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। इसी तरह जनाब स्पीकर, सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम उजरत को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपये हमने किया है और EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर हमने तजवीज़ किया है। EOBI को वो काम कर रहे हैं कि 10,000 रुपये कर दी जाए। तो ये वो जनाब स्पीकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि माली मुश्किलात के बावजूद जनाब स्पीकर हुकूमत ने तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का तमाम तर फायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले एक महीने में नुमाया कमी की। उसमें डीजल की कमी ऑलमोस्ट 35 रुपये है, उसमें पेट्रोल की कमी जो है वो 20 रुपये है, उसमें लाइट डीजल की कमी 17 रुपये फी लीटर है। तो इस पॉलिसी को आइंदा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए फॉलो किया जाएगा। जो इंटरनेशनल प्राइसों में कमी आएगी या जो रुपए की वैल्यूएशन अगर अल्लाह के फल से बेहतर होगी तो ये जो इसका फायदा है ये आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमें जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट
के सिलसिले में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। प्लीज बाइंडिंग ऑफ स्पीच है, तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जनाब जाएं। स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमों में जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिला में सरमायाकारी की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए 9 जून के पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी। उसके बाद हमें काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है अपना नेशनल बचत जो स्कीमों में है, उसको भी आप कंसिडर करें। तो मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूं कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमायाकारी की जो हद 50 लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह, उसको भी 75 लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को जरूरत हो, अगर रेवेन्यू या इंटरनेशनल प्राइसेस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखुसूस और दोनों हाउसेज के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपए से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस के जरिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते। वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम इलाकों की तरक्की व खुशहाली के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और हुकूमती हिताती जमातें भी इसी हिकमत अमली और विजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा इजला यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिफाई के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 57 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट में 66 अरब रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मद यानी कि SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माली साल में खातर खा फंड्स फ्राहम किए गए हैं बल्कि अगले माली साल में भी 2023-24 में भी इसके लिए 90 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा हूँ, SDGs। जनाब स्पीकर, साइंस और खासकर IT के फरोग के लिए 34 अरब रुपए, जबकि पैदावारी शोबों ज़राअत सनत मादनियात के लिए PSD में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती बजट यानी करंट बजट जो है अदर देन PSDP, उसमें ज़राअत के इक़दामात के लिए उसमें भी 13 अरब इस रकम के अलावा रखे गए हैं।
غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے، جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی، اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے۔ نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی۔ یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہے، منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا، ملک کی انٹرسٹ پہ میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں، ماس و ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں ان کے علاوہ فرنیچر، دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن، مائکرو ویو، فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو پابندی تھی، اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس جو اسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجرز جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے، وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر میں معزز ایوان کے سامنے کچھ اور اہم نکات پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک اہم معاملہ پبلک فائنانس مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ امور میں اصلاحات کے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اپنے دور اقتدار میں وفاقی و صوبائی محکموں میں بہت اصلاحات نافذ کی۔ اس سلسلے میں کچھ نئی تجاویز معزز ایوان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ موجودہ مخلوط حکومت نے بھی اصلاحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، جس میں قابل ذکر جو TSA کا نفاذ ہے، نئے جنرل فائنینشیل اینڈ ٹریجری رولز ہیں اور کیش اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ رولز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مدد کریں گے ہماری فائنینشیل ڈسپلن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم۔
सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहां की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं, उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूं कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फलां है, उसमें तो ठीक है, ये फलां दूसरी जो उसको ठीक कर दे। भाई एक आप पेंशन लें जो सबसे ज्यादा है। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए, ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद जरूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज्यादा होती है, वरना क्या जरूरत है कि हम पेंशन छोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 97-99 में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियां वीवीआईपी को मिलती थी, और कॉमर्स मिनिस्टर उसका, ये बैठे हो कॉमर्स मिनिस्टर, उसमें मुझे याद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 1.2 क्लॉज होती थी, वो आप उनको जनाब ड्यूटी फ्री गाड़ियों की इजाजत देते। ये गवर्नर्स, ये प्रेसिडेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये इन सबको ये लिस्ट थी, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको देती थी, आप 3000 सीसी गाड़ियां फ्री मंगवा लें। और इस मुल्क में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से ज्यादा मरतबा उस ओहदों पे आए मुख्तलिफ में और गाड़ियां ली। मैं मजीद आपको एविडेंस दे सकता हूं कि वो गाड़ियां मंगवाई और बेची और करोड़ों रुपए की जो ड्यूटी बचाई वो जेब में डाल ली। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 97 कॉमर्स मिनिस्टर बना, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर 98 में बना, आखिरी दिन तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया, वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था। और मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया, मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है। हम गरीब आदमी तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम तो हर चीज कहते हैं टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो, वो भी दो, हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 17 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 3000 सीसी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा। तो जनाब मैं इस पे बिलीव करता हूँ। इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहां से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है। तो ये जनाब स्पीकर, मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूं ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है। मेरी जाती जेब से तो नहीं ऐसी चीजें जानी है या किसी, लेकिन मैं समझता हूँ मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा, तो इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, तो किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूं, बावजूद के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया,
लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और यह फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहां 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं। आपको पता है, मेरी आपसे 1-2 बात हुई। तो ये हमने भी बड़े खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये जनाब स्पीकर 3 पिछली पूरी रातें हम इन नेगोशिएशन में रहे, मैं और मेरी टीम, और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ कि पूरी टीम सारी रात काम करते हैं। सो हम बजट में तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं मोटी चीजें अर्ज भी कर देता हूँ रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये जो कटौती है 85 अरब की, ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दिया पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज्यादा उनसे वापस ले ले। तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है। बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है, वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो, कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका इंटरेक्ट फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीजें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं, और हमने उन्होंने हमारी बात मान ली है। इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफी लंबे चले हैं, 3 रातें चली हैं और पूरी रात हमारा इस में गुजरा है। जनाब स्पीकर, इसके नतीजे में ये जो मैंने अर्ज किया कि जो हमारा जो टैक्सेस का हदफ है 9,200 अरब है, आपको भी पता है, और उसके नतीजे तो बहुत स्मॉल एक लेस देन कह लें कि अमाउंट है, 2.5%, 3% से भी कम है। तो ये इसके नतीजे में जाहिर है कि नंबर चेंज होंगे। अब हमारा जो बजट 9 जून को हमने पेश किया था, तो इसके नतीजे में माली साल 23-24 के एनुअल बजट स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल 2023
اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، ایف پی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس۔ صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا جناب اسپیکر۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا، اور پینشن 14,480 ارب روپے ہو جائے گا۔ پینشن کا تخمینہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا، یہ 761 ارب سے بڑھ کے یہ 801 ارب روپے ہو جائے گا۔ اس میں جو فائن چونی ان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ چونکہ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانی، جو پینشنز کی اناؤنسمنٹ ہے اسی طرح پینشنز ملے گی۔ سبسڈی کا تخمینہ 1064 روپے ہو جائے گا، گرانٹس کا تخمینہ 1064 ارب ہو جائے گا، گرانٹس کا تخمینہ 1405 ارب روپے ہو جائے گا۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آئی۔ ظاہر ہے 215 کے نئے ٹیکسز، 85 ہم اپنے اخراجات کم کریں، 300 ارب جو ہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی مزید امپروو کر جائے گا۔ ہم کم اتنا قرضہ لیں گے، ہماری فسکل پوزیشن زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ان تمام تبدیلیوں کو بجٹ بکس میں جناب اسپیکر شامل کر دیا گیا ہے، اور جو میں پھر وقت آنے پہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے بعد جو میں اپروول لوں گا اس معزز ایوان کا، وہ اب امینڈڈ فگرز پہ ہوگا۔ یہ ساری ان میں انکارپوریٹ چیزیں کر دی گئی ہیں جو کل رات فائنل ہوئی ہیں، اور آج صبح ہم نے اس سے کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے جناب کو صبح فون بھی کیا اور گزارش کی کہ 11 بجے آپ 3 بجے رکھ لیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں اور ایوان کا بھی کہ آپ نے پھر ہمیں کو 4 گھنٹے اور دیے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے یعنی فارمل طریقے کے ساتھ اپنے تمام چیزوں میں شامل کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو جن مشکل مالی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی پچھلی حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جن کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح پچھلے 1 سال میں انہی کے ریاست مخالف سرگرمیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، وہ اس کے 9 مئی کا جو ہے واقعہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے گروہوں اور جتھوں سے پاکستان کے باشعور اور باخبر عوام بخوبی آشنا ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کا نصب العین ملک اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے جنرل الیکشن کے ذریعے دوبارہ خدمت کا موقع فراہم کیا تو ہم اپنے نامکمل معاشی ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا کریں گے اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مزید اقدامات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا پریڈکشن نہیں ہوئی، اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال 2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معاشی قوت بن چکے تھے، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار